चलो श्रुति रीड करो एक बार इसको। Okay, sir. Seit Mutis seit ihr selbst. Sebastian Hilbert war so jahrelang Berufssoldat, aber dann fühlte er sich nicht mehr glücklich und suchte beruflich andere Herausforderungen. Er wollte sein Leben ändern. Zufällig sah er einen Bericht über ein Sucht, शुत्स है। Suchtprojekt, शुत्स। Suchtprojekt. नहीं जुक नहीं है। शुत्स है। शुत्स प्रयोग प्रोजेक्ट। O- Okay, sir. Schutzprojekt हम्म। für Wildtiere in Afrika und wusste sofort, dass er so etwas selbst gern machen würde. Bei einem zweimonatigen Aufent Aufenthalt in, in einer Wild Wildtierstation in Namibia lernte er das Leben aus einer anderen Perspektive kennen. Nach seiner Rückkehr und dem Ende der Bundeswehrzeit probierte er noch ein Studium aus, aber auch das gefiel ihm nicht. Die Sehnsucht nach den Wildtieren war stärker. Aus diesem Grund ging Sebastian Hilbert schließlich wieder nach Afrika und arbeitete dort als Wildhüter. So sammelt, so sammelte er Erf Erfahrungen mit verschiedenen Wildtieren, die er auch fotografiert. Heute ist er Fotograf und Buchautor, lebt in Deutschland und fährt regelmäßig nach Afrika. Der Schutz der Wildtiere ist sein größtes Anliegen, denn ihre Situation wird von Jahr zu Jahr wesentlich schlechter. Er möchte sich weiter für sie einsetzen und auch anderen Menschen Mut machen, das zu tun, was ihnen wichtig ist. ओके। देखो कल हमने किया था, मैं दोबारा से करा देता हूँ एक बार, है ना। देखो, Sebastian Hilfert war 12 Jahre lang Berufssoldat, aber dann fühlte er sich nicht mehr glücklich। मतलब जो जेबिस्टिन हिल्फार्ट है वो 12 साल तक सोल्जर था, आर्मी मैन जो होता है। aber dann fühlte er sich nicht mehr glücklich। उसके बाद he was not feeling happy und suchte beruflich andere Herausforderungen, और he was searching different challenges। beruflich मतलब प्रोफेशनली डिफरेंट चैलेंजेस सर्च कर रहा था। Er wollte sein Leben ändern, he wanted to change his life। वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता था। Zufällig sah er einen Bericht über ein Schutzprojekt für Wildtiere in Afrika। Zufällig मतलब इवेंचुअली, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंटली उसने एक रिपोर्ट देखी। किसके बारे में? एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में। मतलब एक प्रोजेक्ट देखा, प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट देखा वाइल्ड एनिमल्स इन अफ्रीका में के बारे में। उन wusste sofort, उसको पता चल गया, dass er so etwas selbst gern machen würde, कि वो ऐसा ही कुछ करना चाहता, कि वो like to do something like that। Bei einem zweimonatigen Aufenthalt in einer Wildtierstation in Namibia lernte er das Leben aus einer anderen Perspektive kennen। तो 2 महीने का उसका स्टे था उस वाइल्ड स्टेशन पे नामीबिया में, और उसने वहां एक, मतलब अब लाइफ के किसी दूसरे पर्सपेक्टिव को देखा कि लाइफ ऐसे भी जी जा सकती है ना। नाक जाइनर रुक के जब वो वापस आया, उन देम एंड देयर बुंदेस वेयर साइट। बुंदेस वेयर साइट क्या होती है? जो टाइम पीरियड होता है उसका, आर्मी का। प्रोवेट एंड नो काइन स्टूडियम, उसने एक पढ़ाई भी करी
अब das gefiel ihm nicht, लेकिन वो पढ़ा, उसको पसंद नहीं आई वो पढ़ाई। Bundeswehr साइट, देखो एक वर्ड आया है Bundeswehr साइट। बुंदस, देखो Bundeswehr साइट। वेयर साइट क्या होता है? बुंदस का होता है स्टेट, और वेयर साइट क्या होता है बताओ? तो लास्ट टाइम आपने सोल्जर सर्विस पढ़वाया था इसको। हाँ तो वही है, सोल्जर सर्विस ही है इसका। बुंदस वेयर साइट का मतलब सोल्जर सर्विस ही होती है ना। यस सर। तो उस पढ़ाई के दौरान, मतलब वो पढ़ाई जब खत्म हुई ना उसकी सोल्जर वाली, वापस आने के बाद, मतलब पढ़ाई नहीं, जो वापस आया और उसकी जो जो क्या बोलते हैं, उसकी सर्विस खत्म हुई आर्मी वैन वाली, तो उसने एक पढ़ाई ट्राई करी, है ना। प्रोबेटी एयर नॉक आइन स्टूडियो आउस प्रोबिन, मतलब ट्राई करना एक तरह से। अब दस गिफील ईमनेस, वो उसको पसंद नहीं आई। ये गिफालन वर्ब का पास्ट टेंस है, देखो गिफालन का गिफील हो जाता है, लिख लो इसको चाहो तो। आउस प्रोबियन का मतलब होता है चेक आउट, टू ट्राई समथिंग आउट ना। आउस प्रोबियन मतलब टू ट्राई समथिंग आउट। Die Sehnsucht nach den Wildtieren war stärker, जो डिजायर थी ना किसकी, वाइल्ड एनिमल्स की, वो स्ट्रांग थी, वो खींच रही थी उसको अपनी तरफ। Aus diesem Grund ging Sebastian Hilfert schließlich wieder nach Afrika। Aus diesem Grund का मतलब है, aus diesem Grund मतलब इस कारण की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। गिंग, गियन का गिंग हो गया देखो। सेबास्टियन हिल्फर्ट चला गया वापस फाइनली, वीडर नाका पे दोबारा से अफ्रीका चला गया। उन अर्बाइटेटर डॉट als Wildhüter, विल्ड कौन होते हैं? जो एनिमल को सेव कर बचाते हैं, है ना, विल्ड। प्रिजर्वर बोल सकते हो, प्रिजर्वर, जो एनिमल को सेव करते हैं ना, कोई मारे नहीं उनको, वो उसको बोलते हैं विल्ड ह्यूटर। जो जामेल्टे एर erfahrungen mit verschiedenen Wildtieren, जामेल का मतलब होता है टू कलेक्ट, तो उसने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किया, मिट फैसिनेंट Wildtieren, डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के साथ। डी एर आउट फोटोग्राफियट, जिनको वो फोटोग्राफ करता था। डी क्या रहा है यहाँ पे? रिलेटिव सेंटेंस है देखो, और फोटोग्राफी इनका फोटोग्राफियट हो जाए, पास्ट टेंस है। heute ist er heute ist er Fotograf, today he is photographer und Buchautor। क्या नाम है, फ्रॉम पाटिल। शायद बुक आउटोर आपने सही नहीं पढ़ा था, मेरे को ऐसा याद है। शायद सर गलत पड़ा होगा। और कॉमा आया था, और आप कॉमा पे रुके भी नहीं थे, ये भी मेरे को शायद याद है ना। सर वो मैं ओके चश्मा नहीं पहनी थी इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था ढंग से। ओके ओके, क्योंकि देखो कॉमा आ रहा है तो एक सेकंड रुकना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे फुल स्टॉप आ रहा है, कॉमा आ रहा है, तो तभी तो अपने को थोड़ा सा पाउजे लेना है वहां पे, है ना। तो heute यस ist er eher Fotograf und Buchautor, आज वो फोटोग्राफर और बुक राइटर है। लेफ्ट इन डॉइचलैंड, जर्मनी में रहता है। उन फेट रेगल मैसेज नाक अफ्रीका, और रेगुलरली अफ्रीका जाता है। Der Schutz der Wildtiere ist sein größtes Anliegen। शुस क्या होता है? प्रोटेक्शन। देयर विल्टीयर मतलब क्या हो गया आपका, ये जेनेटिव हो गया, राइट। और अनलीगल मतलब कंसर्न, उसका सबसे बड़ा कंसर्न है ये, कि भाई एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स आर हिज बिगेस्ट कंसर्न। देन बिकॉज ihre Situation wird von Jahr zu Jahr wesentlich schlechter, क्योंकि उनकी सिचुएशन ईयर टू ईयर, साल दर साल क्रूशल होती जा रही है ना। Ihr müsste sich weiter für sie einsetzen, देखो वो उनके लिए कुछ करना चाहता है। einsetzen का मतलब एफर्ट्स एक तरह से ना, स्टेक बोल सकते हो, मतलब वही स्टेक, उनके लिए कुछ करना चाहता है, मतलब उनके लिए कुछ स्टेक करना चाहता है।
तो उसको सेट करना चाहता है ना। और आउट अंदर मेंशन मुट माखन, और दूसरे लोगों को करेज भी देना चाहता है कि भाई तुम भी ऐसा करो, कि ऐसा कर दास ऐसा करने के लिए। बस इन एंड दिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये था। अब देखो इसमें कितनी पास्ट टेंस की वर्ब आई है आपकी ना। देखो ऊपर से देखो एक बार, ये फॉर्म्स आपको आनी चाहिए सारी। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी कर लेना। देखो वार, है ना, फ्यूल्ट, जूक्ट, वोल्ट, जा, वूस्ट, लेंथ, प्रोबियट, ये फील, गिंग, अर्बाइटेट, जामेल्ट, ये सारे कुछ है ना। कुछ बचा हो तो देखो, कुछ मेरे हिसाब से बचाना नहीं चाहिए, कुछ सारी किए मैंने। राइट। पास्ट टेंस आया भर भर के ना, सिंपल पास्ट। तो इनकी फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। जैसे वारन, जाइन का वारन हो जाता है, फ्यूलन का फ्यूल्टन हो जाता है ना, वोलन का वोल्टन हो जाता है, वीसन का वुस्तन हो जाता है। आउस प्रोबियन का आउस प्रोबिएटन हो जाता है ना, प्रोबिएट है आउस, प्रोबिएटन आउस बोल सकते हो। ये फालन का गिफील हो जाता है, अर्बाइटन का अर्बाइटीटन हो जाता है, जामेल का जामेल्टन हो जाता है। डन। ये था इंपॉर्टेंट। राइट। अब एक और पढ़ लेते हैं टेक्स्ट, फिर बात करेंगे इस पे ना, या इसके क्वेश्चन बता दो, इस पे चर्चा कर लेते हैं। बस हार्ट डिपेंड्स ऑन फ्रूअर गेमार्क, पहले क्या करा आपने बताओ। यू नाउ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पलाश, was hart डिपेंड्स ऑन फ्रूअर गेमार्क, क्या आंसर आ सकती Er, है? er war ein Soldat. या एरवार ein Soldat, Berufssoldat ना, या एरवार ein Soldat। ओके। und was hat die Lebenswende verursacht? was hat die Lebenswende, Lebenswende क्या होते हैं, कल बात करी थी हमने, बताओ। सोलर लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। हाँ, तो क्या क्या कॉजेस थे उसके। तो टर्निंग पॉइंट्स ने क्या क्या चीज चेंज करी उसके। सर जब वो नामीबिया गया था वाइस स्टेशन, हम्म। तो er fühlte nicht वहां glücklich, उसको लाइफ er wollte etwas anderes machen, beruflich anderes machen, und er fühlte sich nicht glücklich। यही कुछ था रीजन ना। और was macht die Person jetzt, अभी वो क्या कर रहा है, er schützt, है ना, आया था, er schützt die Wildtiere und er ist Fotograf und Buchautor। ये सारी चीज आएगी इसके अंदर। चलो अब सेकंड वाले पे आते हैं। Ich will leben, das ist alles, I want to live, this is everything। मैं जीना चाहती हूँ, ये लड़की है, das ist alles, this is everything। कौन पढ़ेगा? जूम यूजर भैया, यश कुमार, पढ़ना पसंद करेंगे आप? बुक है आपके पास? पलाश आप पढ़ो। Christina Vogel ist zweifache Olympiasiegerin und 11-fache Weltmeisterin als Bahnradfahrerin. Sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als sich im Sommer 2018 ein schrecklicher Unfall ereignete. Christina Vogels stürzte beim ट्रेनिंग उन सो इसको ट्रेनिंग ही पढ़ेंगे या फिर ट्रेनिंग किसी और इंग्लिश वर्ड है, बाइम ट्रेनिंग।
beim Training und verletzte sich an der Wirbelsäule. Seitdem ist sie vom Oberkörper abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Von einem Tag auf den anderen veränderte sich ihr Leben radikal. Nach dem Unfall war sie eine Zeit lang im Krankenhaus, aber sie kämpfte für ihre Selbstständigkeit und kann mittlerweile wieder allein Auto fahren. Das braucht sie auch für ihre vielen Termine, beruflich und privat. 2019 ehrte eine Zeitung sie als Heldin des Jahres, denn sie ist bekannt als Powerfrau. Für ihren Optimismus und ihre Energie bewunderten und bewundern sie viele. Sie war schon ein Jahr nach ihrem Unfall in vielen Projekten tätig und ist politisch engagiert. Sie gewann eine lokale Wahl und ist nun im Stadtrat Erfurt aktiv. Das alles macht sie neben ihrer Arbeit als Polizistin. Auch ihr Privatleben bleibt unverändert und sie möchte später mit ihrem Mann Kinder bekommen. ओके, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जो क्रिस्टीना वोगल है वो 2 टाइम्स ओलंपियन विनर है और सर एल्फाके का मतलब क्या होता है 11 बार, 11 बार और 11 टाइम्स वेल्ट मास्टर वर्ल्ड वर्ल्ड मास्टर चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। हाँ ओके 11 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन als बानरार से ये स्पोर्ट है कोई सा और वो साइकिल देखिए, स्पेशल साइकिल रेसिंग होती है वो स्पेशल साइकिल होती है रेसिंग वाली। मैं दिखाता हूँ ओके आपको। अब मेरे को देखो, क्या बोलते हैं उसको, बानराड ना, वो ट्रैक बाइसिकल होती है, ट्रैक वाली देखी होगी आपने, जो रेसिंग होती है। नहीं आई देखी? डोंट थिंक नहीं ये मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। हाँ, ओलंपिक में होती है, देखो। फोटो देखोगे तो आपको याद आ जाएगी। देखो दिखाता हूँ। हम्म बान राड देखो, इस तरह की होती है बान राड, ये दिख रही है फोटो में, देखो इस तरह की, ये खूब देखी होगी आपने। देखो ये हाँ सो ये देखिए बान राड बोलते हैं इसको ना। ओके ये रेसिंग में अलग से होती है, 400 मीटर की रेस, 1 किलोमीटर की, उसकी हिसाब से होती है ना, अलग ही ओके आती है। ओके, सो तो अब ठीक है ट्रैक बाइक ना। ओके हम्म, सो कंटिन्यू करूँ जी। Sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. So, Höhepunkt का मतलब टर्निंग पॉइंट रिलेटेड होता है नहीं ना, क्या अपने, हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे थी, मतलब होए पुंग मतलब कैरियर के टॉप पॉइंट पे बोलते हैं ना, ये मतलब हुआ इसका। ओके तो जब वो लाइक इस चीज में पार्ट ली थी तो वो अपने करियर के पीक पे थी हम्म Alsatians um, मतलब जब उसको मतलब जब अपने करियर के पीक पे थी तब उसको एक आई थिंक 2018 की समर में एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया लाइक उसने एक्सपीरियंस किया ये चीज हम्म एंड क्रिस्टीना राइगनन मतलब क्या होता है? राइगनन वो है, ये राइगनन, टू हैपन, टू Yeah, अकर कैन होना, sir, गेट to happen. टू अकर होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। आई थिंक वही होगा सर हाँ, टू हैपन या टू अकर। आगे चलो। सो स्ट्यूट से भी उसका मतलब क्या होता है उसके उनका मतलब टू फॉल, गिर गई वो, टू फॉल डाउन। ऊपर लिखिए मैंने, देखो स्टूसन वर्ब है, स्ट्यूसन। ओके हम्म और सो वेबल सॉइल है कोई बॉडी पार्ट होता है क्या लाइक ब्रेक करना विर्बल जॉइंट होती है, बोलती है ना उसको, क्या बोलते हैं, बैकबोन। हाँ ओके तो उसको एक फॉल हो गई थी ट्रेनिंग के टाइम पे और उसके आई थिंक जो बैकबोन होती है उसके अंदर इंजरी हो गई थी ठीक है। उसने उस चीज को हर्ट कर लिया था जाइडेमिस्ट उसके सिंस बाद से क्या देन हुआ? राइट देन मतलब हाँ सिंस देन। सिंस देन हाँ हम्म सो ओबर क्योपर का मतलब क्या होता है इसके अंदर ऊपर के काफी ऊपर नए मतलब हो गया, वर्ड्स हैं देखो अपना जैसे बॉडी पार्ट है, जैसे रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, तो ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, लंगड़ा हो जाता है, वैसे काम नहीं करता ना, एक तो लैम हो जाता है ना। अच्छा हाँ ठीक है ऐसा कहना चाह रहा है टेक्स्ट।
तो तब से उसका जो ऊपर का बॉडी का पार्ट है वो नहीं काम कर रहा और वो अब लाइक व्हील चेयर में बैठी है। हम्म, Von einem Tag auf हम्म। ये कह रहा है अ, फॉर्म, मतलब फॉर्म ओवर के ऊपर अपवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड्स की बात हो रही है, मतलब रीढ़ की हड्डी से नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा उसका। इसका मतलब ये हुआ ओवर ओके कॉर्पस अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब पता क्या होता है? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ना। सर, तो ये क्या कह रहा है, ऊपर की बॉडी नीचे की तरफ काम नहीं कर रही? नहीं, आ, क्या भाई देखो, फॉर्म ओवर कॉपर अपवर्ड्स कहना चाह रहा है ये, मतलब नीचे की तरफ। अपवर्ड्स का मतलब तो डाउन, मतलब डाउन साइड होता है, नीचे की तरफ। तो ऊपर का बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो काम नहीं कर रहा? हाँ, वो जैसे रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही तो वो हिस्सा काम नहीं कर रहा होगा ना, तो नीचे की तरफ वाला, ओके। ये मतलब होना चाहिए ना। ये लैम्ड हो गया, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, लैम हो गया, लंगड़ा जैसे बोलते हैं ना। भाई आधी बॉडी काम कर रही, आधी नहीं कर रही ना। चलिए आगे। um तो एक लाइक फ्रॉम वन डे ऑफ लाइक अ डिफरेंट चेंज, मतलब इस चेंज के टाइम से हर लाइफ इज बिकम radical. हम्म, Uh, After the accident, she was in the hospital for a very long time. हम्म। अब was अब शी कैम्फ्ड, शी फाइटेड ना। कैम्फन का मतलब टू फाइट, उसने लड़ाई करी अपने आप से, जेल्फिंस्काइट से, अपने आप से ना। okay. आदमी आदमी अंदर से ही लड़ता है पहले ना, मजबूत होता है ना। Selbstständigkeit का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टैंडिस्काइट का मतलब क्या हो सकता है बताओ? uh, इंडिपेंडेंस सेल्फ बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस। मतलब सेल्फ सेल्फ इंडिपेंडेंस हो गया, खुद से लड़ाई ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस self-sufficiency. नहीं होगा? हम्म, खुद से। So self सर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्या? मतलब ये लड़ाई कर रही है किससे? फॉर ईयर सेल्फ से, खुद के सेल्फ डिपेंडेंस है ना। like self-sufficiency के लिए यस, basically. हाँ, कि आंधी से Okay. अंदर से मजबूत होने के लिए लड़ाई करी इसने, ये मतलब होगा ना। फाइट, शी फाइटेड, अंदर से आदमी लड़ता है ना कि मुझे जीना ही है, आगे बढ़ना ही है। सेल्फ, खुद से लड़ाई करी उसने, ये मतलब हुआ है। Okay. And then for a while वो वापस अकेले और like कार भी चला और सकती है। मिटर वाइल मतलब मीन टाइम, मीन वाइल, दोबारा से अकेली वो कार भी चलाने लग गई। शी कैन ड्राइव द कार। हाँ। आगे। Das braucht sie. दास ब्राउक जी। She needed like also a lot of appointments for this professionally and privately. दास मतलब ये, मतलब कार चलाना क्यों जरूरी था उसके लिए? उसको बहुत सारे क्योंकि अपॉइंटमेंट होते थे, उसको दिखाने जाना होता था ना, हम्म इसलिए। बिरोफ्लिश और प्रिवाट, प्रोफेशनली और प्राइवेट दोनों के लिए ना। आगे चलो। okay, so हम्म 2019 में उसने उसके ऊपर लिखा गया लाइक हम्म उसके ऊपर लिखा गया एक नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर। नहीं। मतलब 1919 में, 2019 में सॉरी, एक अखबार ने उसको आल्स हेल्डन, मतलब हीरो ऑफ द ईयर के ऑनर से नवाजा, ओह। है ना। उसको हीरो ऑफ द ईयर का अवार्ड हुआ, मैगजीन ने छापा उसको, ये मतलब और है। फिर बिकॉज ऑफ दैट शी एरन का मतलब होता बिकेम है टू ऑनर, मतलब शी वाज ऑनर्ड इन 2019 एज ए हीरो ऑफ द ईयर। ओके। सो हम्म तो 2019 के अंदर she was honored by a newspaper as the hero of the year. Because of that she became known as the power woman basically. हम्म For her optimism and her energy, um readers नहीं मतलब बहुत सारे uh, लोग उसको क्या करते थे, सरप्राइज करते थे उसको देख के, और उसको वो करते थे, मतलब बेमुंडन करते थे। बेमुंडन क्या होता है? so surprise like
एडमायर करते थे, उसकी प्रशंसा इंस्पायर करते थे। होते थे उससे। हाँ नहीं, बेवंडर को मतलब प्रशंसा, एडमायर करना, उसको एडमायर ओके। करते थे, यार कितनी तो स्ट्रांग वुमेन है। उसकी उसकी ऑप्टिमिज्म और उसकी एनर्जी के लिए उसको लोग एडमायर करते थे और अभी तक करते हैं। हम्म। um, बेवंडर को तो सरप्राइज, आई थिंक वो होता है, सरप्राइज करना होता है बेवंडर ना। एक बार मैं चेक कर लूँ। करो एक बार। um, एक सेकेंड। हाँ सर, एडमायर ही आ रहा है। हम्म। हम्म, अ, अब किधर से? हाँ एक सेकेंड। जीवा um like she was already 1 year after her matlab she was already after a year in her accident in a lot of projects, like she was active in them और हम्म। पॉलिटिक्स में भी engaged थी। हम्म। um, जी गिवान ein lokale Wahl, उसने एक चुनाव जीता, इलेक्शन जीता। गिवान मतलब गिवन एंड वर्ब है, अच्छा गिवन का ओके, सो गिवान हो इसका जाता है। पास्ट है। हाँ। ओके, she won a local election। um ist nun im Stadtrat Erfurt। स्टार्ट का होती है सिटी काउंसिल, सिटी, एयरफोर्ट की सिटी काउंसिल में एक्टिव है वो अभी ना। okay, हम्म। she's done all this next alongside her work as a journalist। जर्नलिस्ट नहीं, पॉलिसिस्टन, पुलिसमैन बन गई वो। अच्छा हाँ ठीक है। हम्म। सर जर्नलिस्ट के लिए क्या होता था? मैं दोनों में कंफ्यूज जर्नलिस्टन, रहती हूँ। जर्नलिस्टन। हाँ ओके ठीक है। तो इसने ये सब किया alongside her work as a police woman। हम्म। हम्म। um also her private life stays unchanged, हम्म। and she wants to have kids with her husband later। या तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ खड़ी हो गई वापस से वो, है ना। शी वॉज ए स्ट्रॉन्ग वुमन, राइट। कितना पास्ट टेंस आया देखो इसमें, कितनी सारी वर्ब्स आई हैं, इन पे तो मार्क्स बहुत लिखना। बहुत सारी न्यू vocab भी है। यस, तो इनको समझना बहुत जरूरी है भाई, हाईलाइट कर लो एक बार, है ना। वार, एराइग्नेट, टुस्ट, फेलेस्ट, ये परफेक्ट है देखो, गेलेम्ट und verändert, war, bekämpft, braucht sie, उसके बाद ehrt als Vorfall für jene bewundern, और ये वो है, ये सेम वर्ब, वही एक भी वर्ब है ना। sie war, बाकी ठीक है ना, बाकी नहीं है कुछ, ये इतनी सारी वर्ब्स थी देखो, है ना। क्लियर। हटा दे। अब देखो यहाँ पे, बस हट जी पेजन फ्यूअर gemacht, पहले क्या करती थी वो, sie war zweifache Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin, है ना, als Bahnradfahrerin, ये आएगा इसमें ना, आएगा नहीं आएगा। und was hat sie Lebenswende verursacht, क्या कॉजेस थे उसको चेंज करने के, sie hatte einen schrecklichen हाँ Unfall, है ना।
Sie hatte einen schrecklichen Unfall und das Leben hat plötzlich geändert. वो लाइफ तुरंत ही चेंज हो गई उसकी ना, लाइफ हुआ भी नहीं हुआ. Und was macht die Person jetzt? Sie arbeitet als Polizistin und sie ist tätig, ja, sie ist aktiv im Stadt Rat Erfurt. बोलना पड़ेगा ना. Sie hat eine lokale Wahl gewonnen. ऐसे बोलना पड़ेगा या नहीं बोलना पड़ेगा? कल आपको क्या करना है, इस पे लिख के लाना है. Welche Lebensgeschichte finden Sie interessant? कौन सी स्टोरी, लाइफ स्टोरी आपको इनमें से ज्यादा पसंद आई, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्यों लगी उसका रीजन भी देना है. उस आर्मी मैन वाले की या इसकी? कल ही आप बोलोगे, कल तैयार करके लाओगे आप. बोलो. हाउस ऑफ गाबे आपका. हाउस ऑफ गाब. हाँ जी, करके ले आओगे. बताओ हाँ या ना, कुछ तो बोलिए. Yes, sir. फ्राउ पाटिल. Yes, sir. जूम यूजर भाई. बोलेगा ही नहीं है जूम यूजर. देखो पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं हम लोग. सिंपली टी लगा दो. आपका रेगुलर वर्ब में टी लगाते ही पास्ट टेंस बन जाएगा. जैसे जूकन का जूकटन हो जाता है, ऐसे ही जो आपकी टीडीएमएन वाली वर्ब है उनमें ईटी लगा दो, आपका पास्ट टेंस बन जाएगा. और जो इरेगुलर वर्ब है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी. जेन का जा हो जाता है, डेंकन का डाकते हो जाता है, वीसन का वूसते हो जाता है. तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब निकाल दो इसमें से आप. एक काम करो, अब मैं आपको दे रहा हूं 5 मिनट्स का टाइम. रेगुलर मेसी के वर्ब निकाल दो दोनों पैराग्राफ में से, और इरेगुलर वर्ब निकाल दो फटाफट. राइट. हाँ जी, निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे? मित्रों, या कल निकाल के ले आओगे? बताओ, कल के लिए दे दूं या होमवर्क? Yes, so सर अभी चैप्टर में आगे चल सकते हैं. इसलिए ना ये कल करके ले आना, ज्यादा ठीक रहेगा ना. कल करके लाओगे आप इसमें ना. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे एक चीज दे रखी है, देखो. परफेक्ट और पेटेटुम, है ना. कब परफेक्ट यूज करना है, कब पेटेटुम यूज करना है. परफेक्ट और पेटेटुम सिंपल पास्ट. पेटेटुम का मतलब सिंपल पास्ट. परफेक्ट हाबन और जाइन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना. तो देखो, lesen die Regeln und vergleichen sie mit ihrer Sprache. Gibt es verschiedene Vergangenheitsformen, verwendet man beim Sprechen und beim Schreiben unterschiedliche Formen. Über Vergangenes berichten. पास्ट के बारे में रिपोर्ट करनी है आपको. तो देखो, beim Sprechen oder in Präsenten Texten wie E-Mails verwendet man meistens das Perfekt. ईमेल्स में और स्पीकिंग के दौरान, ड्यूरिंग द स्पीकिंग वी यूज परफेक्ट टेंस. और ऑफिशियल टेक्स्ट वी साइटम्स आर्टिकल, Berichten, Reports, Literation, Texten, Literature Text verwendet man häufig das Präteritum. अक्सर पास्ट टेंस यूज होता है. Einige Verben verwendet man fast immer im Präteritum. Sein, haben und Modalverben में हम लोग परफेक्ट में यूज नहीं करते. इन वर्बों को, इन वर्ब्स को पास्ट में ही यूज किया जाता है. जैसे जाइन का परफेक्ट क्या होता है, इस gewesen होता है. राइट. haben का hat gehabt, और मोडल वर्ब का वोलन का वोल्टन हो जाता है, जोलन का जोल्टन हो जाता है, ड्यूरफन का डोर्फटन हो जाता है, म्यूसन का मुस्तन हो जाता है, म्योगन का मॉक्टन हो जाता है, और कौन सी बची, क्योनन का कॉन्टन हो जाता है. इस तरह से. क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी Clear, बताइए. sir. Clear. ओके, जैसे देखो नीचे ना सेंटेंस बना के लाने कल आपको छोटे छोटे. जैसे देखो नीचे दिया हुआ है, नाक द शूल स्टूडियट एर इन क्यूर. तो अब ये तो प्रेजेंट में हो गया आपका, है ना.
अब इसका पास्ट क्या बना? nach der Schule studierte er in Köln. स्कूल के बाद उसने क्लोन में पढ़ाई करी। परफेक्ट क्या बन जाता है इसको? nach der Schule hat er in Köln studiert. बताओ सही है गलत है? दोनों एग्जाम्पल देने हैं आपको। प्रेजेंट पे सेंटेंस बना लो, उसका पास्ट बना दो, उसका परफेक्ट बना दो, इस तरह से ना। रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं अपन। और wählen Sie eine Überschrift und schreiben Sie einen Text dazu. Tauschen Sie Ihre Texte dann mit einem Partner, einer Partnerin und korrigieren Sie sich gegenseitig. एक दूसरे के आपको करेक्ट भी करना है। देखो कल इनमें से किसी पे आपको लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। Der Tag, der alles veränderte, एक दिन जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। ऐसा कुछ मिस एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, ऐसा कुछ के बारे में लिखा जा सकता है। कॉन्सर्ट नाक वार रीजन एयरफ्लोग, रीजन एयरफॉल सॉरी, कॉन्सर्ट नाट मतलब कॉन्सर्ट नाइट वॉज ए टॉप सक्सेस। अगर मान लो कोई परफॉर्मर हुआ तो कॉन्सर्ट करिए आपने तो वो बहुत टॉप सक्सेस, जैसे दिलजीत दोसांझ वाली ना, लोग खरीद कितने टिकट बिक रहे हैं और दे दो इतने और आ जाएंगे इससे ना, तो वो रीजन एयरफॉल हो गया भाई। नो स्टार्ट, नोयर स्टार्ट, नो स्टार्ट, नोयर स्टार्ट। देखो ये स्टार्ट है और ये स्टार्ट है, दोनों फर्क है। नया सिटी, नई स्टार्ट। स्टार्ट फेस्ट begeisterte die Besucher, सिटी फेस्टिवल ने बेजूकर को क्या कर दिया? एक्साइटेड कर दिया, बेगाइस्टेड कर दिया, है ना। तो इनमें से किसी भी पे टॉपिक पे आप लिखने की कोशिश करो और मुझे चेक कराइए प्लीज आप, है ना। कोशिश करना फ्री टाइम में जब भी आपको मिले टाइम लिखने की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फास्ट begeisterte die Besucher. Gestern fand das beliebte Startfest in der Stoßen als Stadt. यहाँ पे वर्ब कौन सी आ रही है? स्टार्ट फिंडन। देखो स्टार्ट फिंडन, तो फिंडन का फांड हो गया, पास्ट टेंस है ना। फीले विजुकर वारंदा ऐसे लिख सकते हैं। फीले विजुकर कामन, बहुत सारे विजिटर आए। इन दी कॉन्सर्ट, क्लियर। इस तरह से सेंटेंस को बढ़ा दो आगे। दी जेंगरन और जिंगर वारन देयर टॉल, है ना, ऐसे कुछ लिखो, पास्ट में लिखना है आपको। एस गाब जो फील टॉल एटमॉस्फेयर, दी विजुकर टांस्टन आउक दबाई, मतलब जो विजुकर थे वो साथ में डांस भी कर रहे थे। उन जांगन या टांस्टन जांगन सुजामन, वो साथ में गा रहे थे और डांस कर रहे थे। Ich, ich hatte so viel Spaß, लिख सकते हैं इस तरह से, नहीं लिख सकते बताओ? आप चूज करना किस पे लिखना है आपको, राइट। हम चलते हैं आगे। Die Sache mit dem Glück, the thing with the luck. Was macht glücklich? Sammeln Sie im Kurs, erstellen Sie Ihre persönliche Top 5 Liste und vergleichen Sie. क्या चीज खुश करती है आपको? बताओ। Ich bin glücklich, wenn es mein Lieblingsessen gibt. मैं खुश होता हूं जब when there is a favorite food of mine, जब मेरा फेवरेट फूड वहां पे होता है। और इस तरह सेंटेंस बनाओ फटाफट जल्दी से, स्पोंटन। फ्राउ पाटिल बनाइए, Ich bin glücklich से बनाओ। Okay, sir. Ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Freundin treffe. Wenn ich mit meiner Freundin treffe, तलाश Yes, बनाओ। sir. Ich bin glücklich, wenn ich Filme oder Serien sehe. Wenn ich Filme oder Serien sehe, wenn ich Filme und Serien auf Netflix sehe, है ना। Yes, sir.
फ्राउ पाटिल उसको थोड़ा अच्छा कर लो। वेन इश मिट माइनर बेस्टन फ्रेंडिन ट्रेफर, राइट? Ich Okay, bin sir. glücklich, wenn ich mit meiner besten Freundin treffe. Clear? Yes, sir. Wenn ich meine Schwester besuche. Ja. Okay. Ja. Ich bin glücklich, wenn ich meine Eltern besuche. Und meine Mutter kocht für mich etwas Besonderes. Dann bin ich glücklich. बोल सकते नहीं बोल सकते? Okay. Ich bin glücklich, wenn es ein Cricket-Spiel gibt, wenn there is a cricket match. बोल सकते हैं? Ich bin glücklich, wenn Kohli sehr gut spielt. हाँ? लिख सकते हैं इस तरह से? कब खुश होते हो आप? तो वही सारी चीज नीचे दे रखी है. Lesen Sie die Beiträge im Forum. Welche Themen nennen Sie Personen? कौन से टॉपिक्स को लोग मेंशन कर रहे हैं? नेनन का मतलब मेंशन करना. Vergleichen Sie mit Ihrer Liste in Funpa. फुनपा में आपने लिस्ट बनाई थी, उससे कंपेरिजन करना है थोड़ा सा, है ना? चलिए रीड करते हैं जल्दी से. लास्ट वाला पैराग्राफ किसने पढ़ा था? ये कोई आई थिंक मैंने। बॉन्टो लाइव कोई प्रोफाइल का नाम है. हाँ जी, राव साहब आप पढ़ो उसको. ग्लूकलिश बिनिश. Wenn ich morgens aufwache, draußen blaue Himmel ist und ich im Wald laufen kann. मतलब wenn ich morgens aufwache, जब मैं सुबह जगता हूं, draußen blauer Himmel, ब्लू वो हो रखा है स्काई, है ना? और मैं जंगल में भाग सकता हूं, तो ये मेरे लिए क्या है? तो मैं खुश होता हूं. दूसरा ऑप्शन क्या दिया इसने? Wenn meine Kollegen während der Arbeit, मतलब काम के दौरान आप जब हंस सकते हैं, आप हंस पाते हैं, तो मैं खुश होती हूँ, राइट? ओके. when ich for the Arbeit, मतलब काम से पहले मैं शांति में अगर ब्रेकफास्ट कर सकूं तो मैं खुश हूं. इस तरह से ऐसे बोला है. आगे चलते हैं. पारासेल्जुस. हाँ जी, फ्राउ पाटिल रीड करो. Yes, sir. Für mich ist das größte Glück die Gesundheit. Ich hatte vor einem Jahr große Probleme und war oft schwach, aber jetzt kann ich wieder alles machen. Eine lange Radtour mit meinem Freund im Urlaub auf Festival fahren, neue Orte in der Stadt entdecken. Nach der langen Krankheit bin ich wieder fast der alte, neugierig und glücklich. वो करो, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी मेरी हेल्थ है, ऐसे बोला है सर उसने. तो ठीक है. मुझे एक साल के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे नहीं, एक और साल के लिए मैं नहीं, बहुत एक साल वीक थी. पहले. फॉर आई एम यहाँ लिखा हुआ है. ओके. यस सर. एक साल पहले. एक साल पहले मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए थे और मैं बहुत वीक हुई थी. Jetzt kann ich wieder alles machen. लेकिन मैं वो अभी सब उससे बहुत जल्दी क्योर हो गई. सुनो, एक चीज आई यहाँ पे. फास्ट फास्ट तालत मतलब 99%, 100% नहीं, 99%. अगर फास्ट लग जाता है उसका मतलब 100% नहीं होता है ना. लगभग सब कुछ कर सकती हूँ. आगे चलो. Eine lange Radtour mit, वो अपने फ्रेंड के साथ एक लंबा सा रात मतलब साइकिल राइड कर सकती है और फेस्टिवल्स पे वेकेशन पे जा सकती है. नए सिटी को डिस्कवर कर सकती नए है. प्लेसेस इन द सिटी लांगन क्रांति डिस्कवर कर सकती है. वेरी गुड. आगे चलो. तो वो नए सिटीज को एक्सप्लोर करती है.
नहीं नहीं आफ्टर लॉन्ग, सुनो, तो पाटिल सर सुनो, पाटिल देखो, नए ऑर्ट इन द स्टार्ट एंड डेकन, नए प्लेसेस सिटी में, यस सर। सिटी में नए प्लेसेस एंड सेकंड कर सकती है। यन टेकन मतलब, डिस्कवर, यन टेकन मतलब एक्सप्लोर ही होता है ना सर? डिस्कवर, ओके सर। ढूंढना, एक तरह से ना। यस सर। आफ्टर बीइंग लॉन्ग टाइम बीमार रहने के हॉस्पिटलाइज्ड बाद। फॉर द लॉन्ग टाइम। यस हम्म, सर। हम्म, वो अभी बहुत खुश है और उत्सुक भी है नई चीजों को सीखने के लिए। बिल्कुल। विनेश रीड अ फास्ट दे आए थे, पहले की तरह होगी, पुरानी की तरह। तुम्हारी हिंदी इतनी ओके अच्छी सर। कैसी है, ये बताओ मुझे। क्या सर? आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? पता नहीं सर, ऐसी है। साउथ में होने के बावजूद होती नहीं है ना लोगों की, इसलिए पूछा मैंने। हाँ सर, वो तो है, सब पूछते रहते हैं मुझे ऐसे कैसे हो गई है तुम करके। तो कोरिया वर्ड ना सर वो असल। ना इसलिए है क्योंकि मम्मी। हम्म, यस सर। मम्मी कहाँ से मम्मी है? तो महाराष्ट्र से है सर, और हम रहते हैं बॉर्डर पे। महाराष्ट्र में है सर मम्मी का मायका। तो वो तो फिर मराठी आनी चाहिए अच्छी से फिर तो आपको। बॉर्डर एरिया में सर। तो मराठी आपकी मदर टंग हो गई ना। हाँ, मराठी तो आती है सर। हाँ नहीं सर, हम तो कर्नाटक में रहते हैं ना। हाँ हाँ। वो ऐसा है कि मम्मी के यहाँ भी कन्नड़ा ही बोलते हैं सर वो लोग। हम्म, सिर्फ प्लेस महाराष्ट्र में है। ओके, इंटरेस्टिंग है। इसलिए तो हिंदी चली जाती है सर। और हमारे यहाँ जब जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग पूरा मिक्स करके बोलते हैं, तो हिंदी ठीक है सर मेरी। ओके गुड, दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन ना। हाँ पलाश, ग्लुक, ग्लुक्स पिल्स, देखिए ये पिल्स क्या होती है? So, mushrooms, I think. या मशरूम ना। तो बहुत उगते थे वहां पर। हाँ पे, जर्मनी में। हाँ सर, हर साइड अब रोड पे। अब जैसे पता क्या होता है, याद है तुम्हें? तो क्या? मैं कह रहा हूँ, ये याद है तुम्हें सारा? हाँ सर। क्योंकि जैसे अब, जैसे बर्फ पड़ रही है अभी ना, और जैसे स्प्रिंग स्टार्ट होगा, कूलिंग स्टार्ट होगा, फिर ये निकलता है पिल्स, और ये हाँ बहुत सर, टाइम पे ना। उसी टाइम होता था, बट जितना इंडिया में उससे ज्यादा वहां पर होता था। हाँ वो तो है ही, वहां तो ग्रीनरी ज्यादा है ना। सो इंडिया में करेक्ट। अच्छी जो जहाँ ग्रीनरी है, बारिश अच्छी होती है, वहां मिल जाएंगी अपने को। अपने जयपुर में तो कहाँ है सब जगह ग्रीनरी, बची कहाँ है? हाँ सर। अपन तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं अपने यहाँ ना। चलिए रीड करिए। Ich habe Glück, weil ich einen guten Job und eine tolle Familie, sogar mit Händen Schwiegereltern habe. Und glücklich bin ich, wenn wir auch außerhalb des Urlaubs mal einen freien Tag genießen können. Es gibt so viel Schönes in der Umgebung und am Abend essen wir in einem guten Restaurant. Natürlich mit einem leckeren Nachtisch. Was will man mehr? इसको दोबारा पढ़ना, इस वर्ड को। कौन सा सर? रेस्टोरेंट? तीन ही आएगा, रेस्टोरों बोलते हैं ना। सर तो जैसा इंग्लिश में बोलते हैं या फिर लाइक? ये फ्रेंच वर्ड है कि देखा, फ्रेंच से आया है ये। शायद इंग्लिश में भी रेस्टोरेंट नहीं बोलते, रेस्टोरों नहीं बोलते, रेस्टोरों बोलते हैं ना। टी नहीं आता हाँ शायद। सर, इंग्लिश में तो रेस्टोरेंट बोलते हैं, बट आई थिंक लाइक हमको इसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही बोलना है क्या जर्मन में भी? यस यस, रेस्टोरों ही बोलेंगे इसको ना। ओके। Abend essen wir in einem क्योंकि guten पता है इसका रीजन, ये Restaurant. फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है ये। तो फ्रेंच में जो लास्ट लेटर होता है उसको प्रोनाउंस नहीं करते ना। जैसे ओके देखो, सर। एक और ये देखो, ये वर्ड, ये भी फ्रेंच वर्ड है, पता है आपको? डांस नहीं आई है, थिंक शॉन्स है ये। सर। शॉन्स, शॉन्स पढ़ेंगे इसको, डांस नहीं है, सॉन्स पढ़ेंगे है ना। ओके सर। तो ट्रांसलेट करो। um I I have lucky, I have happiness because I have a good job and a good family, um including क्या होते हैं? sir, I think in-laws होंगे ना? इन लॉज पेरेंट्स ना। हाँ, complete with in-laws
and I'm happy when we have holidays outside. नहीं, um मतलब हॉलीडेज के अलावा। अच्छा, so यहाँ पर outside का मतलब यहाँ पर accept है इसका मतलब। ये पता क्या है, ये वो है, आपका प्रीपोजिशन है, ये भी डाटे को गेनेटिव प्रीपोजिशन हो गया ये। ओके सर, सो आउटर लेकिन हाल, नॉर्मली जब मैंने दूसरे टेक्स्ट पढ़े हैं तो उसके अंदर तो आउटसाइड का मतलब आई थिंक आउटसाइड होता है, तो इसको प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब हाँ, ये प्रीपोज, यहाँ पे आप प्रीपोजिशन ही है ये, गेनेटिव प्रीपोजिशन है। देखो आ रहा है ना, दैट लग गया ना, देखो यहाँ पे। हाँ ठीक है। हम्म, And I'm happy when except that we can have like we can do vacations and नहीं enjoy नहीं, like ये कह रहा है वैकेशन के अलावा जब हम फ्री फ्री डे एंजॉय कर सकते हैं तो मैं खुश हूँ। वैकेशन पे तो फ्री डे होते ही है हमारे पास, लेकिन वैकेशन के अलावा अगर फ्री डे होता है तो मैं उसको एंजॉय करते हैं। गेनेशन का मतलब एंजॉय। हाँ सर, वो तो ठीक है, मैं बस वो आउटसाइड की वजह से कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात नहीं। um there are so many beautiful places, yeah, beauties in the surroundings, हम्म, and in the evening um we eat in a good restaurant, हम्म, of course with the tasty, so I think वो नाक्टिश का मतलब like after डेजर्ट, वो होगा ना डेजर्ट, dessert, हाँ। डेजर्ट, डेजर्ट। आदमी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वाह, वाह। अच्छे खाने के बाद अच्छी डेजर्ट मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए या रसगुल्ला मिल जाए, और क्या चाहिए, है मजा आ जाता है, राइट। हाँ जी। अ, यश कुमार पढ़ेंगे क्या आप? फ्लेक्सस Yes, sir. पढ़िए बेटा। Ich bin gerade sehr glücklich. Ich habe mich nachmeilig नेमलिश फ्रिश verliebt verliebt und meine Freundin zeigte mir innerhalb einer Stunde so ये क्या है? mindestens Drei Leibewohle liebevolle nach Nachrichten sie bringt so viel Freunde Freude in in mein meinem Leben। Leben jeden Tag. आगे। Und bis zu unserem ersten Gemeinsamen Urlaub sind es nur noch 6 Tage. Ab diesem diesem Sonntag sind wir in Spanien. भाई, भाई शांति में लिया करने क्लास के, कहाँ से आ रही है इतना डिस्टर्बेंस पीछे से? सर क्या करें, सर घर पे ऐसे। क्या करें, अलग रूम में बैठा करो शांति में, और किसी की तो नहीं आ रही ना। सॉरी सर। मेरी बात सुन, कब तक भागता रहेगा बेटा? देख, ऐसे लैंग्वेज नहीं सीखी जाती है यार। तेरे को इतनी बार समझा दिया पर समझ में नहीं आ रही तेरी बात ना। तू बस टाइम पास कर रहा है, दिक्कत ये है ना, सीखना ही नहीं चाहता, ऐसा लग रहा है मेरे को। हर बार कुछ ना कुछ बहाना, ये वो, पता नहीं क्या दिक्कत है तेरे सॉरी सर। को। सॉरी की बात नहीं है, तेरे को रिलैक्स होगा कुछ दिन बाद। अभी तू कर ले, तेरा टाइम है ना। समझा दिया तेरे की, लेकिन समझ में आ नहीं रही भाई, क्या करें। Ich bin gerade sehr glücklich, मैं अभी बहुत खुश हूँ। Ich habe mich nämlich frisch verliebt, मुझे अभी फ्रेश प्यार हुआ है, ये कहना चाह रहा है। I'm in love, हाँ? Und meine Freundin schickt mir in ein Hals, देखो आ गया गेनेटिव पलाश, वापस से innerhalb eines Stunden, within a hour, mindestens 3 liebevolle Nachrichten। 3 मैसेजेस भेज रही है गर्लफ्रेंड मेरे को, घंटे में, 1 घंटे में 3, विद इन ए आवर। वहां पे आउटर हाल था, यहाँ पे इनर हाल है, ठीक है। जी ब्रिंग सर जो, एक चीज पूछनी है। हाँ बताइए। सर वो जो अब हमारे लाइक गेनेटिव प्रेपोजिशंस है वो एक साथ कब आएंगे, लाइक आप कब कराओगे? अब आ तो रहे, धीरे धीरे आते जा रहे हैं। देखो 2 आए थे कल, त्रॉस तो पढ़ा था अपन ने, वेगन। हाँ सर वो तो ठीक है, बट लाइक आपने वो एक पूरी क्लास ही थी ना लाइक A1 और A2 के टाइम पे, कि लाइक आपने हमको डाटे और एक्यूजेटिव एक साथ करा दिए थे, तो आप गेनेटिव भी एक करा सकते हो क्या एक ही क्लास में?
कर लेंगे किस दिन, उससे कोई इजी, नहीं। कोई उसके अंदर इजी हो जाता है समझना थोड़ा सा। ओके, कर लेंगे ना। Sie bringt so viel Freude in mein Leben. So she brings so much fun in my life. Jeden Tag, every day, ना, हर दिन. Und bis zu unseren ersten gemeinsamen Urlaub or till to our first together vacation sind es nur 6 Tage. तो केवल 6 दिन था वो. अब diesem Sonntagabend sind wir in Spanien. उस Sonnabend मतलब संडे. Sonnabend का मतलब संडे होता है. From this Sunday we are in Spain, Spanian, right? हाँ जी, कौन पढ़ेगा? फ्राउ पाटिल, रीड करो. Okay, Sir. Right, meinem Umzug nach Berlin unternehme ich viel. Es gibt so viele tolle Konzerte hier. Während eines Konzertes verschwindet alles andere. Super sind auch die vielen Modedesigner Modedesigner, Modedesigner mit ihren kleinen Geschäften. Ich freue mich riesig, wenn ich da ein Kleid finde, das wie für mich gemacht ist. Glücklich ist, wer alles hat, was er will. Hat ein kluger Kopf mal gesagt. Genau so geht es mir. करो ट्रांसलेट. So, Umzug क्या होता है? उनसे होता है मूव, Umzug सिटी का नाम है रीएलोकेट, क्या सर? रीएलोकेट था. ओके सर. तो बर्लिन में रीअलोकेट होने के बाद unternehmen से एंटरटेन हो सकता है. एंटरटेनमेंट का मतलब टू एंटरटेन. इश फील, बहुत सारा मजा कर रही हूँ मैं, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, दोस्तों से मिल रही ओके हूँ. सर. हम्म. यस सर. वो बहुत सारे कॉन्सर्ट पे जा रही है. वेरेंड आइनस सर, वेरेंड क्या होता है? ये भी एक गेनेटिव ड्यूरिंग, प्रीपोजिशन है क्या? हाँ, ओके सर. ये भी गेनेटिव प्रीपोजिशन है. यस सर. ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट सर, फ्रेश वेंडेड. फैशनेटेड का मतलब होता है एक तरह से वेरिएंट आइन कॉन्सेप्ट फैशनेटेड आलस अंदर. फैशनेटेड मतलब क्या बोलेंगे इसको? फैशनेटेड को वो होता है ना, गायब हो जाना, ऐसा कुछ होता है. क्या होगा बताओ? सर, कॉन्सर्ट के टाइम पे कैसे कोई गायब हो जाता है सर? नहीं, समय टाइम की बात होगी. वेनिश, डिसअपियर होना ना. ओके सर. मतलब बाकी चीजें गायब हो जाती हैं, सिर्फ आप मजा करते हो, फन करते हो, वो सेंस में बात हो रही है शायद ना. यस सर. हम्म. सर, मतलब नेक्स्ट सब कुछ वाला कुछ समझ ये में यही नहीं कहना आया. चाह रहा है कि ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट फ्रेश विंडेड आलस अंदर, सब कुछ दूसरी जो चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वेनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. सिर्फ आप फन करते हो, बस आपको सिंगर दिख रहा है, कॉन्सर्ट दिख रही है, बाकी कुछ नहीं. यू फॉरगेट एवरीथिंग. ये कहना चाह रहा है मेरे हिसाब से टेक्स्ट. आगे चलो. ओके सर. हम्म. वो सब बहुत अच्छा होता है. और फीलन मॉडल डिजाइनर क्या होता है सर? मॉडल फैशन डिजाइनर जो होते हैं उनको बोलते हैं मॉडल डिजाइनर. मतलब और भी अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे फैशन डिजाइनर अपनी छोटी छोटी दुकानों के साथ हैं वहां पे. ओके दिल्ली सर. में बहुत सारी आपको फैशन डिजाइनर मिलेंगे जो खुद के ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं, खुद ही बनाते हैं. जैसे अपना रोहित बल था, या अपना आजकल कौन है फेमस है ना वो बॉलीवुड में, करण जो, क्या नाम है उसका? हाँ, मनीष मनीष मल्होत्रा. मल्होत्रा सर. ऐसे ऐसे ना. रोहित बल तो यस डेथ हो गई इसकी ना अभी कुछ दिन पहले. यस. रोहित बल. हाँ, आगे चलो. राइस. वो वहाँ बहुत सारे कपड़ों को देखती है और खरीदती भी है. नहीं और नहीं नहीं वो नहीं बहुत उसको नहीं, खुशी. सुनो. Ich freue mich riesig. मुझे बहुत खुशी होती है when ich da ein Kleid finde. यदि इस फैशन डिजाइनर की शॉप में मुझे एक पोशाक मिल जाती है. when I find a dress das wie für mich gemacht ist, जो मेरे लिए बनाई गई है शायद, है ना.
Das wie für mich gemacht ist, जो Yes. मेरे लिए बनाई गई। Yes, sir. आगे चलो। Glücklich Sir, ist kluger Kopf. Glücklich ist, wer alles hat, was er will. जब ये सब हो तो और क्या चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मतलब जिसके पास सब कुछ है और को क्या चाहिए उसको ना। hat ein kluger Okay, Kopf sir. mal gesagt, genauso geht es mir। तो एक जो चतुर जो दिमाग होता है ना, वो ये बात कहता है। तो एग्जैक्टली ये Yes, sir. मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये है। तो ऊपर साइट अनगाबन आए, प्रीपोजिशंस आए आपके, देखो प्रीपोजिशन में डाटिव, जैसे फॉर द अरबाइट, ये निकालना है आपको। और नीचे प्रीपोजिशंस आए डाटिव, außer halb आया है, इसके साथ लिखना है außer halb des Urlaubs, innerhalb eines Stunde, है ना। और während eines Konzerts आया था, देखो वो सारे आपको नीचे निकालना है, गेनेटिव प्रीपोजिशंस। और ऊपर आपको साइट अनगा में निकालना है प्रीपोजिशन डाटिव वाले, फॉर देयर बाइट, अब diesem मोमेंट, अब diesem Sonntagabend, वो सब चीज आई थी, वो निकाल लेना अलग अलग, राइट। इतना ही करेंगे। मैं दिखा दूं इसके आंसर आपको, चलो दिखा देता हूँ। देखो ये सारे आए आपके वहां पे ना, इनर हाल, वेरेंट, आउटर हाल, नोट कर लो। ये सारे साइट प्रीपोजिशन है आपके ना, साइट अनगाबे की बात होगी यहाँ पे। अब, फॉर, नाक, अन, बिसु, जाइट, वेरेंट, वेरेंट ड्यूरिंग, वेरेंट का मतलब ड्यूरिंग होता है। डन हो गया। इतना ही करेंगे आज अपन, कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना। आज अच्छा किया अपन ने शायद, देखो गुड। और कल ही पूरा हो जाएगा चैप्टर आपका, कल ही आपके 2 ही पेज बचे हैं, इसमें हो ही गया, ये 3 पेज है, कल इसको खत्म कर देंगे ना। थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा कल। कल मिलते हैं और कल इसको और सर आप preposition वाली क्लास वीकेंड में ले लोगे? वीकेंड पे करते हैं प्लान, है ना। ओके। ठीक है, auf Wiedersehen, Auf tschüss। Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir.